Hello everyone. Once again, I welcome you all in my third lecture of controllers and compensators. In previous two lectures, we have discussed about proportional controller, integral controller, and proportional plus integral controller. Okay, so let's see the another controller, that is derivative controller. Derivative controller, okay, or D controller. So let's take a feedback control system with controller. So we have a input, then gain of the controller, okay, then we have a system or plant, okay, and a feedback element. Okay, here we are taking the unity feedback. So the gain of unity feedback is 1, and this is basically what derivative controller. Okay, derivative controller, D controller, and output of this derivative controller is applied to this plant to controls or regulate the output of the plant. Okay, so with the controller, as we know that we will get the desired output. Okay, so let us suppose we are taking the second order control system. Okay, so gain of this second order control system is omega n square divided by s plus 2 zeta omega n. Okay, so as I know the definition of controller is basically a function which is used to minimize the deviation or error. Okay, this is basically what error. Okay, so output of the controller is a function of error. Okay, so here we are using the derivative controller. So the output of the D controller, you can write output of D controller will be proportional to the derivative of error signal. Derivative of the error signal. So we can write it. Output of the controller is basically what? Actuating signal, that is ET, is proportional to the derivative of the error signal, and here ET is the error signal. Okay. So if I remove this proportionality, what we can write? ET is equal to, we add a derivative constant here, so KD d by dt et. Okay. Now if I take that Laplace transform, okay, take Laplace transform both side, so it will be EAS is equal to KD as ES, and we can write it EAS divided by ES. Okay, that will be what? KDS. Okay, and this is basically what? This is the gain of the derivative controller. So what we can do here, we can put the gain, okay, gain of this controller here. Okay, and what is the gain? Gain is KDS. Okay, so we can write it, the gain of the controller is KDS. Okay, this is GC. GC is the gain of derivative controller here, and this is basically what? Plant. Okay, so plant gain is omega n square. We are taking the second order system. So from this, what we can say? So
if you see that the output of the controller is proportional to the derivative of the error signal, so we can say the output of the controller can be predicted on the basis of the knowledge of the slope of the error. Okay, so what is the physical significance of derivative? Let us understand here. Let us suppose, okay, we have a input, okay, input to the controller. Okay, so let us suppose this is like this. You have an input to the controller. Basically this is error signal. Okay, because error is the input to the controller, so this is basically input to the controller, and output of the controller is basically what? The differentiation, or you can say the rate of change of the error signal, okay, with respect to time. Okay, so it is rate of change of the error signal with respect to time. So what about the output of the controller? Okay, so output of the controller, you can see here rate of change. It is depending upon rate of change with respect to time. Rate of change with respect to time. Okay, so rate of change क्या है error signal का? यहाँ पे आप देखिए slope is 0. Okay, so rate of change अगर हम बात करेंगे तो differentiation will be 0. At this point the slope is negative. Again you can see here the slope is negative. At this point the slope is 0, and again then the slope is positive. So if we differentiate the error signal, this is basically what? Input error, because error is the input to the controller. So if I differentiate this signal, ठीक है ना, और then what we will get? We will get 0 here because slope 0 है, तो output आपका 0 आएगा, and then नेगेटिव स्लोप मिल रहा आपको, तो आपका आउटपुट डिक्रीज करेगा इस तरीके से. ओके, एंड देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग यहाँ से, एंड देन इट विल बी 0 हियर. यहाँ पे स्लोप आपका 0 हो गया, तो यहाँ आपका जो है यहाँ के बाद आपका स्लोप जो है पॉजिटिव आ रहा है. सो आपका जो रेट ऑफ चेंज है, या आप कह सकते हैं आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर है, दैट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. Okay, so this output of the controller is applied to the plant to control the output of the plant to the desired level. Okay, so this is about the derivative controller. Okay, so if अगर मैं बात करता हूँ gain of the controller, okay, so now we see the gain of the control system. Okay, yeah, gain of system with derivative controller, with D controller. So what will be the gain? So gain अगर मैं मान लेता हूँ total gain is GTS. So what will be the gain? The gain become KDS into omega n square divided by S plus 2 zeta omega n. Okay, now S कट गया, तो आप देखेंगे the gain will be your KD omega n square divided by S 2 zeta omega n. Okay, so gain आप देख रहे हैं यहाँ पे जो प्लांट का गेन था वो ये था. जब हमने यहाँ पे डेरिवेटिव कंट्रोलर इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो जो टोटल गेन आपका आया सिस्टम का, दैट इज के डी ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन. ओके, यू कैन ऑल्सो फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन. ओके, सो व्हाट यू कैन सी फ्रॉम हियर, प्लांट जो हमारा था एक्चुअल प्लांट. ओके, सो उस समय प्लांट का जो टाइप था, टाइप जो हमारा था वो क्या था, क्योंकि एक ही पोल हमारे ऑरिजिन पे लाई कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ द सिस्टम वाज 1 एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम वाज 2. ओके, अगर हमने जब डेरिवेटिव कंट्रोलर इनकॉर्पोरेट किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव कंट्रोलर क्या कर रहा है, एक जीरो जो है
ऑरिजिन पे इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से जो आपका यहाँ पे जो एक पोल था वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, और आपका जो आपका ओवरऑल सिस्टम है उसका जो टाइप है वो डिक्रीज कर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइप ऑफ द सिस्टम इज व्हाट, टाइप इज 0, और ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर भी हमारा 1 टाइप का आएगा। तो सिंस व्हाट वी कैन सी हियर कि टाइप ऑफ द सिस्टम डिक्रीज कर रहा है, सिंस टाइप ऑफ द सिस्टम डिक्रीजिंग, योर स्टडी स्टेट एक्यूरेसी, या आप कह सकते हैं स्टडी स्टेट एरर विल इंक्रीज। ओके, सिंस टाइप ऑफ द सिस्टम इज decreasing, okay, so your steady state error is going to increase. This is the drawback of this derivative controller. Okay, so we can write few points here about the derivative controller by adding D controller. Okay, we add 0 at origin, means type of the system decreases, means type of the system decreases by 1. So steady state error will increase. This is the drawback. Okay, बट सेम टाइम आप देख रहे हैं कि अगर हम डेरिवेटिव कंट्रोलर अकेला जो है यूज कर रहे हैं तो ये जो एक 0 क्रिएट कर रहा है ऑरिजिन पे, इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, जो ऑलरेडी पोल हमारा ऑरिजिन पे था उसको कैंसिल आउट कर दे रहा है। तो उससे क्या होगा, आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी इंप्रूव कर जाएगी। सो वी कैन राइट इट एज द डी कंट्रोलर alone cancels the pole at origin. ओके, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे, अगर आप इसको गौर से देखें तो जो आपका यहाँ पे एक पोल था हमारा, ठीक है, ये जो पोल था जब हमने डेरिवेटिव कंट्रोलर यूज किया तो वो पोल हमारा कैंसिल आउट हो गया इससे, ठीक है ना। जब पोल कैंसिल आउट हो गया इसका मतलब है कि आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। So you can write as the D controller alone cancel the pole at origin, so thus stability of the system improves. Okay, so we cannot use this D controller in isolation, बिकॉज अगर हम डी कंट्रोलर एलोन यूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि सिस्टम का जो है टाइप हमारा 1 से डिक्रीज कर जा रहा है। टाइप डिक्रीज करने से क्या हो रहा है, सिस्टम की स्टडी स्टेट एरर कम हो जा रहा है, और यू कैन से स्टडी स्टेट एरर इंक्रीज कर जा रहा है। तो आप कह सकते हैं ना सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो स्लो हो जाएगा। और साथ में इसका एडवांटेज क्या है कि स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। तो अब यही इसी चीज में इसमें हम लोगों ने इंटीग्रल कंट्रोलर में देखा था कि जब हम इंटीग्रल कंट्रोलर यूज कर रहे थे तो वहाँ पे स्टडी स्टेट एरर तो हमारा डिक्रीज हो रहा था, बट स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है ना। तो जहाँ पे अगर मुझे स्टेबिलिटी अच्छी चाहिए होगी, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव कंट्रोलर यूज करेंगे, ठीक है ना। और जहाँ पे हमें जो है स्टडी स्टेट एरर कम चाहिए होगा तो वहाँ पे हम लोग जो है इंटीग्रल कंट्रोलर यूज करेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डेरिवेटिव कंट्रोलर में जो ड्रॉबैक आ रहा है कि स्टडी स्टेट एरर रिड्यूस हो जा रहा है, इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए हम डेरिवेटिव कंट्रोलर अकेला यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव, दोनों प्रोपोर्शनल कंट्रोलर
प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर साथ में यूज करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कुछ हद तक हम स्टेबिलिटी जो स्टेडी स्टेट एरर है उसको हम लोग कम कर पाएंगे। नाउ वी विल सी अबाउट द PI कंट्रोलर। ओके, सो प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर। नाउ सी अबाउट द PD कंट्रोलर। ओके, सो PD कंट्रोलर में बेसिकली क्या होगा, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर दोनों हम लोग यूज करेंगे पैरेलल में। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ले लिया ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। द गेन ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज Kp and then we are using the derivative controller and the gain of this derivative controller is KdS. Okay, and this is summing block. Okay, so this whole system make the PD controller. Okay, this whole system is PD controller, and we are taking the second order control system as usual. ये हमारा यहाँ से फीडबैक एलिमेंट है और हम लोग यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो गेन ऑफ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज 1, दिस इज आउटपुट, एंड प्लांट गेन जो है हमारा S प्लस 2 zeta omega n। ओके, सो दिस इज GS एंड दिस इज GC। ओके, कंट्रोलर गेन GCS। यहाँ पे हमारा रेफरेंस इनपुट है RS। ओके, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा एरर सिग्नल ES, और कंट्रोलर जो आउटपुट होगा दैट इज एक्चुएटिंग सिग्नल एंड दैट विल बी इनपुट टू द प्लांट। ओके, सो वी कैन राइट हियर output of the PD controller will be what? It will be proportional to error and derivative of the error signal. So we can directly write it EAT. Output of the controller is proportional to error signal ET plus derivative of the d by dt, derivative of the error signal ET. Okay, we can write it like this. So अगर मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूँगा तो क्या होगा, AEAS इज इक्वल टू KP प्लस KDS और ये आपका हो जाएगा ES. So EAS divided by ES, this will be what? This will be the gain of the PD controller. Okay, so gain is what? KP plus KDS. Okay, so this is basically what the gain of the PD controller. ठीक, अब अगर मैं बात करूं ओवरऑल गेन की, ठीक है, ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम, ओवरऑल gain of the system with PD controller. Okay, with PD controller. So what will be the gain? So overall gain जो आपका होगा that is GCS into what? GS. Okay, so you can see it will be what? KP plus KDS into omega n square divided by S plus 2 zeta omega n. ओके, सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर यूज किया, ठीक है, दोनों को पैरेलल में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो टाइप ऑफ द सिस्टम था वो चेंज नहीं हुआ। टाइप ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, ये नॉट चेंज। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट। आप देख रहे हैं क्योंकि जो हमारा प्लांट था, ओरिजिनल प्लांट था, उस प्लांट का टाइप क्या था? 1 था। आपने जब प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर यूज किया तो आपका जो टाइप ऑफ द सिस्टम है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, कांस्टेंट रहा। इसका मतलब ये है कि आप पहले जब आप केवल डेरिवेटिव कंट्रोलर यूज कर रहे थे तो आपका स्टेडी स्टेट एरर डिक्रीज कर रहा था। अब आप लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग द पीडी कंट्रोलर स्टेडी स्टेट एरर इंप्रूव्स। ठीक है, क्योंकि अगर आप जब डेरिवेटिव अकेला यूज कर रहे थे तो वहां पे आपका टाइप ऑफ द सिस्टम डिक्रीज कर जा रहा था, जिसकी वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी हमारी जिसकी वजह से
स्टेडी स्टेट एरर हमारा इंक्रीज कर जा रहा था। अब हमारा क्या होगा, जब हम पीडी कंट्रोलर यूज करेंगे तो हमारी स्टेडी स्टेट एरर जो है रिड्यूस हो रही है, और आप कह सकते हैं स्टेडी स्टेट एरर इम्प्रूव हो जा रहा है। ठीक है ना। तो दिस इज द टोटल गेन ऑफ द PD controller. Now what about the closed loop transfer function with PD controller? So closed loop transfer function अगर मैं फाइंड करना हुआ तो क्या होगा, तो it will be what CS by RS. Okay, transfer function basically what output divided by input where all initial conditions are 0. So CS by RS it will be what GTS divided by 1 plus GTS, because we have taken unity feedback here. Okay, so if you solve this you will get what omega n square kp plus kds divided by s square plus 2 zeta omega n plus omega n square kd s plus kp omega n square. Okay, you can see here we can compare this equation, this transfer function with the standard second order transfer function of control system. But you can see अगर मैं इसको कंपेयर करूं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, so what you can say, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है हमारा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, यहाँ पे जीटा डैश ओमेगा एन डैश कर लेते हैं, ओमेगा एन डैश एस प्लस ओमेगा एन डैश का होल स्क्वायर। तो ये वाला डिनोमिनेटर तो मैच कर रहा है, बट जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट है इसमें एक एस का टर्म आ रहा है। तो आप कह सकते हैं जो आपका न्यूमरेटर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। बट अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ सो वी कैन राइट व्हाट ओमेगा एन डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट के पी ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, सो ओमेगा एन डैश विल बी व्हाट अंडर रूट के पी ओमेगा एन। ओके, और अगर मैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को 1 मान लेता हूँ, ठीक है ना, गेन ऑफ द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज 1, देन व्हाट यू कैन राइट नेचुरल फ्रीक्वेंसी विद PD controller is same as the without controller. Okay, so what about the zeta? So अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो 2 zeta dash ओमेगा एन डैश से कंपेयर करेंगे तो 2 zeta dash ओमेगा एन डैश that will be what 2 zeta ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इंटू के डी। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो चूंकि ओमेगा एन डैश आपका ओमेगा एन के बराबर है, सो यहाँ से अगर हम जीटा डैश फाइंड करेंगे एंड इट विल बी व्हाट, ये तो कैंसिल हो गया तो ये आपका जाएगा जीटा प्लस ओमेगा एन के डी बाई 2। सो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम पीडी कंट्रोलर यूज कर रहे हैं तो हमारा जो डैम्पिंग है ये इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है ना, डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम improves, और आप कह सकते हैं डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। ठीक है ना, अगर डैम्पिंग आपका इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट अबाउट द पीक ओवरशूट? तो पीक ओवरशूट क्या होता है, MP दैट इज इक्वल टू व्हाट e की पावर माइनस जीटा पाई डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। सो अगर आपका जीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो पीक ओवरशूट आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, पीक ओवरशूट आपका डिक्रीज करेगा। साथ में अगर हम बात करते हैं सेटलिंग टाइम की, ठीक है ना, सेटलिंग टाइम, तो सेटलिंग टाइम क्या होता है आपका 4 बाई जीटा ओमेगा एन। ओके, सो यहाँ पे ओमेगा एन कांस्टेंट है, ठीक है ना, बिकॉज ओमेगा एन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ओमेगा एन कांस्टेंट, बट डैम्पिंग आपका इंक्रीज कर रहा है, तो आप कह सकते हैं आपका सेटलिंग टाइम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, सेटलिंग टाइम आपका डिक्रीज करेगा। ओके, सो बट व्हाट अबाउट द राइज टाइम? ओके, TR, व्हाट अबाउट द राइज टाइम? तो आपको यहाँ से देखने से लग रहा है कि अगर हमारा डैम्पिंग इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो आपका राइज टाइम भी
इंक्रीज करना चाहिए, बट यहाँ पे हम डायरेक्टली राइज टाइम को ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारा ये ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। ट्रांसफर फंक्शन जो आ रहा है हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विद पीडी कंट्रोलर, दैट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो डायरेक्टली हम जो है राइज टाइम पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा हमको, लेट्स सी द कंट्रोलर गेन। ओके, सो GCS, what is GCS? Gain of the controller. This gain of the controller is what? That is KP plus KDS. Okay, this is basically what the gain of the controller. So अगर मैं यहाँ से S निकालूँ तो क्या आएगा? That is minus KP by KD. यानी ये एक पोल जो है माइनस KP by KD पे पड़ रहा है। गेन की बात करूँ, अगर मैं गेन का बॉडी प्लॉट ड्रॉ करूँ, ठीक है ना, तो बॉडी प्लॉट क्या होता है? अगर मैं मैग्नीट्यूड dB में वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ग्राफ ड्रॉ करूँ, देन यू कैन सी दिस इज बेसिकली इसका टाइप 0 सिस्टम है, ठीक है ना, टाइप 0 सिस्टम। ओके, गेन ऑफ द कंट्रोलर इज टाइप 0 सिस्टम, ठीक है। तो जब टाइप 0 है तो इनिशियल स्लोप इसका कितना होगा? कांस्टेंट होगा, और इसका कुछ गेन होगा, ठीक है ना। तो कांस्टेंट स्लोप होगा इनिशियली, ठीक है। फिर जो हमारा 0 पड़ रहा है, ये जो हमारा कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आ रहा है या जो फ्रिक्वेंसी पड़ रही है, ये कहाँ पे पड़ रही है? 0 पे, ठीक है ना। तो जब 0 पे आता है तो क्या होता है? जो स्लोप होता है वो प्लस 20 dB से चेंज हो जाता है, प्लस 20 dB पर डिकेड। ओके, सो यहाँ से आप लोग क्या देख सकते हैं, ठीक है, ये जो हमारा कंट्रोलर का जो गेन है, ये एक लो पास फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा है, सॉरी हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों हाई पास? क्योंकि ये देखिए हाई फ्रिक्वेंसी पे जो गेन है दैट इज हाई, ठीक है, और लो फ्रिक्वेंसी पे जो गेन है वो लो है, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी पे जो आपका गेन है वो आपका हाई है, ठीक है ना, और लो फ्रिक्वेंसी पे गेन लो है, तो ये एक हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं क्योंकि इसका हाई फ्रिक्वेंसी पे गेन ज़्यादा है तो इसका बैंडविड्थ हमारा क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है ना। सो बैंडविड्थ जो है ज़्यादा होगा, यानी बैंडविड्थ इंक्रीज करेगा। अगर हम कंट्रोलर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? बैंडविड्थ इंक्रीज करेगा। और हमको पता है कि जो राइज टाइम है और बैंडविड्थ है, इसका प्रोडक्ट जो है दैट विल बी कांस्टेंट। ओके, सो अगर हमारा बैंडविड्थ इंक्रीज कर रहा है तो हम कह सकते हैं जो हमारा राइज टाइम है, ठीक है ना, राइज टाइम दैट इज व्हाट? TR, दैट विल डिक्रीज। ओके, सो यहाँ पे बाई इनकॉर्पोरेटिंग द PD कंट्रोलर राइज टाइम विल ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम चूंकि देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो कंट्रोलर गेन है ये एक हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे S इक्वल टू क्या है? माइनस KP अपॉन KD, ठीक है। तो हाई फ्रिक्वेंसी पे आपका जो गेन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? ये जितनी भी नॉइज होता है हमारा वो हाई फ्रिक्वेंसी पे ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है? ये हाई फ्रिक्वेंसी पे नॉइज है उसको और एम्पलीफाई कर रहा है क्योंकि उसका गेन ज़्यादा है। तो एक पॉइंट हम और मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, एम्पलीफाइज द नॉइज एट हायर फ्रिक्वेंसी। ओके, बट अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, ओके, स्टेबिलिटी की बात करूं तो अगर हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज कर रहे हैं तो गेन हमारा क्या है? KP प्लस KDS। तो अगर हम प्रॉपर जो है KP और KD की वैल्यू चॉइस करते हैं तो जो हमारा रूट लोकस है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, ठीक है ना, रूट लोकस लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, ठीक है ना। अगर हम प्रॉपर KP और KD की वैल्यू चूज करते हैं तो रूट लोकस हमारा जो है लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, रूट लोकस शिफ्टेड टू लेफ्ट साइड। दस
improves the stability, improves the stability। तो इसमें क्या है, जब हम PD कंट्रोलर यूज कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी ऑल्सो इम्प्रूव्स। ओके, ठीक है। तो PD कंट्रोलर जब हम यूज करें तो स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव करती है और साथ साथ में हम स्टेडी स्टेट एरर जो है हमारा उसको भी इम्प्रूव कर पा रहे हैं, जो कि ड्रॉबैक था हमारा जब हम केवल डेरिवेटिव कंट्रोलर यूज कर रहे थे। वहाँ पे हमारा क्या था, जब हम केवल डेरिवेटिव कंट्रोलर यूज कर रहे थे तो स्टेडी स्टेट एरर इंक्रीज कर जा रहा था। तो अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर यूज करते हैं तो स्टेडी स्टेट एरर भी हम लोग जो है कम कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोल। ओके, डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोल। ठीक है, डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोल में क्या होता है, जो हमारा कंट्रोलर होता है वो प्लांट के फीडबैक में लगा होता है। देखिए कैसे, दिस इज योर प्लांट, ओके, दिस इज प्लांट। ओके, मान लीजिएगा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है प्लांट और सिस्टम। ओके, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ठीक, एंड जो हमारा डेरिवेटिव फीडबैक मीन्स जो फीडबैक एक्शन है, जो डेरिवेटिव एक्शन है वो फीडबैक में है प्लांट के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक डेरिवेटिव जो है वो फीडबैक में लगा दिया प्लांट की। फिर जो हमारा फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, अगर मैं यूनिटी फीडबैक ले रहा हूँ तो यूनिटी फीडबैक, ओके, ये हमारा रेफरेंस इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया। फीडबैक एलिमेंट गेन, यूनिटी फीडबैक है तो गेन 1 हो गया। ठीक है ना। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में जो हमारा कंट्रोलर का गेन है दैट इज व्हाट KD इंटू एस, वो जो है यहाँ पे फीडबैक में लगा हुआ है। ठीक है, सो अगर मैं इस डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की एनालिसिस करूँ तो व्हाट अबाउट द गेन, ओके, गेन विद डेरिवेटिव फीडबैक। ओके, व्हाट अबाउट द गेन विद डेरिवेटिव फीडबैक। सो गेन क्या हो जाएगा, GTS। तो अब देखिए ये इसके फीडबैक में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये अगर इसका गेन GS है तो इट विल बी व्हाट GS। ठीक है ना, HS। ठीक है, यहाँ पे HS क्या हो गया, KD इंटू एस, सॉरी GS अपॉन 1 प्लस GS HS। ओके, GS इंटू HS, HS क्या है हमारा KDS। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट व्हाट ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, ओके, डिवाइड बाई 1 प्लस दिस विल बी व्हाट KDS इंटू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट व्हाट ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस KDS ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ओवरऑल गेन आपका क्या है, सब में S का टर्म आ रहा है तो S कॉमन आ गया, देन इट विल बिकम S प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस KD ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ओके, तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो आपका टाइप पहले भी हमारा 1 था, टाइप अभी भी हमारा सिस्टम का 1 है। ठीक है ना, टाइप में हमारा कोई चेंजेस नहीं आया। अगर आपका टाइप ऑफ द सिस्टम चेंज नहीं हुआ है इसका मतलब क्या है, आपका स्टेडी स्टेट एरर इम्प्रूव हुआ है या आपका कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, अगर हम इसका निकालते हैं, ठीक है ना, सो अगर मैं डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का, तो GT हमारा GT अपॉन 1 प्लस GT इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालता हूँ, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, सो इट विल बी व्हाट GTS डिवाइड बाई 1 प्लस GTS। ओके,
सो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा देन व्हाट विल बी सी एस बाई आर एस, दिस इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड दिस विल बी व्हाट ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस अगर आप इसको सॉल्व करिएगा देन यू विल गेट 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर के डी एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो आप देखिए ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन डैश इज इक्वल टू ओमेगा एन, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा डैश ओमेगा एन डैश प्लस ओमेगा एन डैश का होल स्क्वायर, सो व्हाट यू विल गेट ओमेगा एन डैश इज इक्वल टू ओमेगा एन, दैट इज कांस्टेंट। ओके, बट इफ यू सी तो यहाँ से अगर आप इसको कंपेयर करें एस वाले टर्म को तो 2 जीटा डैश ओमेगा एन डैश दैट इज इक्वल टू व्हाट 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इनटू के डी। सो जीटा डैश विल बी व्हाट, सिंस ओमेगा एन डैश इज इक्वल टू ओमेगा एन तो आपका जो जीटा डैश है डैम्पिंग दैट विल बी व्हाट जीटा प्लस ओमेगा एन के डी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से भी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि हमारा जीटा का वैल्यू इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है ना, सिंस हम देख रहे हैं कि जीटा हमारा जीटा इम्प्रूव कर रहा है, डैम्पिंग इम्प्रूव कर रहा है। डैम्पिंग अगर इम्प्रूव करेगा तो हमारा जो पीक है मैक्सिमम ओवरशूट है दैट इज व्हाट ई टू द पावर माइनस जीटा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जीटा पाई अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। सो अगर जीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो मैक्सिमम ओवरशूट आपका डिक्रीज करेगा, मैक्सिमम ओवरशूट डिक्रीज करेगा। राइज टाइम के बारे में भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे सिंस जीटा आपका इंक्रीज कर रहा है पाई माइनस 5 अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। सो अगर जीटा आपका इंप्रूव कर रहा है तो डिनोमिनेटर आपका डिक्रीज कर रहा है और राइज टाइम भी आपका जो है इम्प्रूव करेगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग सेटलिंग टाइम के बारे में कह सकते हैं। ठीक है, सेटलिंग टाइम हमारा 4 बाई जीटा ओमेगा एन होता है। ठीक है, 4 बाई जीटा ओमेगा एन, सिंस ओमेगा एन तो कांस्टेंट है, अगर हम जीटा हमारा डैम्पिंग इम्प्रूव हो रहा है तो हम कह सकते हैं सेटलिंग टाइम विल ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है ना, सेटलिंग टाइम हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं इस सिस्टम के पोल्स की बात करता हूँ तो नॉर्मली जो हमारा सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम होता है उसके पोल्स कहाँ पे होते हैं, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा डी जे ओमेगा डी, या आप इसी को लिख सकते हैं माइनस जे ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, ओमेगा एन आपका कांस्टेंट है, अगर आप देखें तो माइनस जीटा ओमेगा एन, अगर ओमेगा एन कांस्टेंट है और जीटा इम्प्रूव कर रहा है तो यानी कि ये जो रियल पार्ट है आपका पोल्स का वो इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है पोल्स आपके लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, आप इसे कह सकते हैं पोल्स आर शिफ्टेड टू लेफ्ट साइड। ओके, जब पोल आपके लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो सिस्टम की स्टेबिलिटी जो है इम्प्रूव करेगी। तो जस्ट इम्प्रूव द सिस्टम स्टेबिलिटी। ओके, सो ये डेरिवेटिव कंट्रोल के बारे में हो गया। नेक्स्ट आपका कंट्रोलर है पीआईडी कंट्रोलर। ओके, सो पीआईडी कंट्रोलर में बेसिकली क्या है, हम तीनों कंट्रोलर्स को पैरेलल में यूज करते हैं। सो जिससे क्या होता है, हमारा डेरिवेटिव के भी जो हमारे एडवांटेजेस हैं और इंटीग्रल के भी जो हमारे एडवांटेजेस हैं वो सारे एडवांटेजेस जो हैं हमारे हमको मिल जाते हैं, जिससे कि हमारा स्टडी स्टेट एरर भी इम्प्रूव हो जाता है और साथ साथ हमारी स्टेबिलिटी भी सिस्टम की बनी रहती है। तो पीआईडी कंट्रोलर के बारे में विशेष आप लोग देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये आपका हो गया कंट्रोलर। ठीक है, तो इसमें चूंकि तीनों का यूज़ करेंगे, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव प्लस इंटीग्रल, तो इन तीनों को हम लोग जो है पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज proportional controller, this is differential controller, gain of differential derivative controller, and this is the gain of integral controller. And here we have a plant. Okay, so this is plant.
आप कोई भी सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम ले लीजिए, एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, ओके, एंड सपोज I am taking the unity feedback control system. So HS is equal to 1. Output of this system is CS, input is RS. So this is basically what the error signal ES, or this is the output of the controller, that is actuating signal ES. So this is whole your PID controller. So by suitable by proper choice of the KP and KD and KI, you can make the system stable, as well as you can reduce the system stability. You can make the system stable as well as you can reduce the steady state error. So gain, अगर हम इस कंट्रोलर के गेन की बात करें तो सिंस गेन विल बी व्हाट, KP प्लस KDS प्लस KI अपॉन S, ओके. सो अगर आप इसको सॉल्व करें देन यू कैन राइट KD S स्क्वायर प्लस KPS प्लस KI, ओके, डिवाइड बाई S. सो आप देख रहे हैं कि अगर हम PID कंट्रोलर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो एक जीरो हमारा सिस्टम, सॉरी, एक पोल सिस्टम में ऐड हो रहा है, ठीक है ना. एक पोल सिस्टम में ऐड हो रहा है, पोल वो भी कहाँ पे, ऑरिजिन पे. एक पोल आपका सिस्टम का ऑरिजिन पे ऐड हो रहा है. तो अगर एक पोल ऐड कर रहा है इसका मतलब क्या है, ये सिस्टम का टाइप इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना. अगर टाइप ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करेगा, टाइप इंक्रीजेस, तो अगर टाइप सिस्टम का इंक्रीज करेगा तो स्टेडी स्टेट एरर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ओके. साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो है जीरोस भी ऐड हो रहे हैं. तो जीरोस की वजह से जो आपका पोल्स हैं वो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जा रहे हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम की स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव कर जा रही है. तो दिस इज ऑल अबाउट द PID कंट्रोलर, ओके. थैंक यू.